Hello students, how are you all? I hope you all are doing great. I am Neha Rajvanshi and I welcome you all in our today's class, that is English class of class 10th. So students, in today's video we will start reading with our next chapter, that is chapter number 7 from the book First Flight, and the name of the chapter is Glimpses of India. Okay, so what is glimpses? Glimpses means we can say some partial view of some momentary view of something. Okay, so in this chapter we will come to know more about our own country India. We will come to know about some more information is given in this chapter about India. Okay, and this chapter is written into 3 different parts. 3 different writings are given, written by 3 different writers. Okay, so first of all, part 1, the name of part 1 is A Baker from Goa. Okay, and this writing is written by Mr. Lucio Rodriguez. Okay, similarly in the same way 2 different more writings are there, and those are also written by 2 different writers. Okay, so in today's video we will read with our part number 1, that is A Baker from Goa. Okay, so let's begin, and after reading this chapter we will have some more information, okay, some more idea about the tradition, about the culture of our own country, that is India. Okay, that's why the name of the chapter is Glimpses of India, right? So let's begin. Part 1, A Baker from Goa. Okay, our elders are often heard reminiscing nostalgically about those good old Portuguese days, the Portuguese and their famous loaves of bread. Okay, so before explaining these lines, I want to tell you something, that you all are aware that the state Goa, that state was once ruled by the Portuguese people, right? You all know that, and that Portuguese culture, their tradition is still there in Goa. Okay, if you visit Goa, so that culture, that tradition of Portuguese people you can see still in Goa, right? So the writer is saying that to the elders of Goa, okay, the old people who are there in Goa, so they are often heard reminiscing nostalgically about those good old Portuguese days. Okay, so the elders of Goa, okay, वो अभी भी उन दिनों को याद करते हैं. The memories of those Portuguese days are still there in their mind. और किस तरह से याद करते हैं? Reminiscing means remembering. Okay, so those good old days को वो रिमेंबर करते हैं. कैसे? नॉस्टैल्जिकली मीन्स वेरी फॉन्डफुली, और वी कैन से देयर इज अ वेरी फॉन्ड मेमोरीज ऑफ अबाउट दोज ओल्ड गोल्डन डेज, राइट? सो राइटर ये कहना चाह रहे हैं कि जब गोवा में पोर्टुगीज लोग रहा करते थे, सो उस समय यहाँ का जो कल्चर था, जो ट्रेडिशन था, वो यहाँ के लोगों को इतना ज़्यादा पसंद था कि यहाँ के जो एल्डर्स हैं वो अभी भी उस समय को याद किया करते हैं और बिल्कुल नॉस्टैल्जिकली याद करते हैं. वो जो टाइम है, वो टाइम उनके लिए एक बहुत ही गुड मेमोरीज की तरह उनके पास है, उनके साथ है. ओके, सो बहुत ज़्यादा वो समय उनके लिए बहुत अच्छा था और उस समय को वो बहुत अच्छे तरीके से, अच्छे मन से उस समय को वो याद करते हैं, राइट? और वो क्या याद करते हैं? द पोर्टुगीज एंड देयर फेमस लॉज ऑफ ब्रेड. वो याद करते हैं पोर्टुगीज पीपल को और उनके द्वारा यूज़ की जाने वाली लॉज ऑफ ब्रेड को. ओके, सो हियर इन द पिक्चर वी कैन सी दीज आर द लॉज ऑफ ब्रेड. सो दिस वाज मोस्ट पॉपुलरली यूज्ड बाय द पोर्टुगीज पीपल. ओके, those eaters of loaves might have vanished, but the makers are still there. Next, the writer is saying that those eaters of loaves, यानी it means the Portuguese people. Okay, so now जो Portuguese people हैं वो तो गोवा में नहीं रहे, so वो तो वहाँ से vanish हो चुके हैं, वो वहाँ से disappear हो चुके हैं, but still जो makers हैं, okay, the people who used to make these loaves, वो अभी भी वहाँ पर हैं, वो अभी भी गोवा में हैं. वो bakers जो है they are still there in Goa. Okay, so ये जो कल्चर है इस तरह से ब्रेड यूज़ करने का, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्रेड जो गोवा में यूज़ की जाती थी, that culture was started, that culture was introduced, we can say, by the Portuguese people, right? So अब जो Portuguese people हैं they are not there, they have disappeared, they have vanished from there, but still जो कल्चर है, लोग जो थे इन loaves of bread को खाने के इतने हैबिचुअल हो चुके थे कि वो कल्चर, वो ट्रेडिशन that is still there. इसीलिए जो मेकर्स हैं, जो बेकर्स हैं, they are still there in Goa. Okay,
We still have amongst us the mixers, the molders and those who bake the loaves. Okay, so जिस तरह से एक loaf of bread बनाया जाता है तो उसके लिए क्या क्या चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल डो मिक्स करना होता है. सो कौन मिक्स करता है? मिक्सर. सो राइटर क्या कह रहे हैं कि जो ईटर्स हैं यानी कि जो पोर्टुगीज पीपल हैं वो तो यहाँ से जा चुके हैं, बट स्टिल जो हमारे पास हैं अभी भी कौन कौन है? वी हैव मिक्सर्स, वी हैव मोल्डर्स एंड वी हैव दोज हु बेक द लोव्स. इट मीन्स द बेकर्स. ओके, सो जो 3 प्रोसेस है एक लोफ को बेक करने के लिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें मिक्स करना होता है, सेकेंड हमें मोल्ड करना होता है, देन वी हैव टू बेक इट. सो ये जो 3 प्रोसेस के लिए 3 डिफरेंट काइंड्स ऑफ पीपल हमें चाहिए होते हैं वो अभी भी गोवा में हैं. ओके, Those age-old time-tested furnaces still exist. और साथ ही साथ वो सभी furnaces means हम here in the picture you can see these are the furnaces. So जो bread होती है वो इसी के अंदर बेक की जाती है, right? So इन furnaces को यूज़ किया जाता है to bake the bread. So राइटर कह रहे हैं कि वो जो furnaces हैं वो furnaces जो कि कैसी हैं? age old हैं, they are so old. Okay, so from the Portuguese times ये furnaces यहाँ पे हैं और इसीलिए फर्नेसेस अब कैसी हो चुकी हैं? दे आर टाइम टेस्टेड. टाइम टेस्टेड मतलब इतने पुराने टाइम से यहाँ पर है और स्टिल दे आर इन वर्किंग कंडीशन. इट मीन्स वो जो टाइम का टेस्ट है वो भी वो पास कर चुकी हैं. इतने लंबे टाइम से वो काम किए जा रही हैं बिल्कुल प्रॉपरली. वो फर्नेसेस अभी भी काम कर रही हैं और वो फर्नेसेस दे आर स्टिल देयर इन गोवा. अभी भी वो गोवा में एग्जिस्ट करती हैं. ओके, The fire in the furnaces has not yet been extinguished. और इसीलिए राइटर कह रहे हैं कि इस फर्नेसेस के अंदर की जो फायर है वो फायर अभी भी कंटिन्यू बर्न हो रही है. उस फायर की फ्लेम कंटिन्यूसली बर्न हो रही है. वो फायर अभी तक एक्सटिंग्विश्ड नहीं हुई है. क्यों? क्योंकि यहाँ के जो लोग हैं वो बिल्कुल वैसे ही फॉन्ड ऑफ हैं टू ईट द ब्रेड, टू ईट द लॉफ ऑफ ब्रेड, जैसे कि पोर्चुगीज पीपल यहाँ पे हुआ करते थे. ओके, सो ये जो ट्रेडिशन है कि ब्रेड को इतना ज़्यादा यहाँ पे इतना ज़्यादा यूज़ किया जाता है, इतना ज़्यादा जो कंज्यूम किया जाता है, दैट ट्रेडिशन वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय द पोर्टुगीज पीपल. बट जो गोवा के जो लोकल लोग हैं अब वो अभी तक उस कल्चर को कंटिन्यू करते आ रहे हैं बिकॉज दे आर हैबिचुअल. वो हैबिचुअल हो चुके हैं वो सभी चीज़ों को यूज़ करने का. ओके, इसीलिए जो बेकर्स हैं वो अभी भी गोवा में हैं, फर्नेसेस अभी भी गोवा में है और अभी भी ब्रेड उसी तरह से बेक की जाती है जैसे कि ओल्डन टाइम में की जाती थी. ओके, The third and jungle of the traditional bakers bamboo heralding his arrival in the morning. अब जो बेकर्स हैं वो केक को बेक करने के बाद क्या करते हैं? What is the system? What is the routine that they followed? So जो बेकर्स हैं वो मॉर्निंग में क्या करते हैं? अपने बैम्बू के साथ आते हैं अपनी ब्रेड को सेल आउट करने के लिए. ओके, सो जब वो आते हैं तो उनके हाथ में एक बैम्बू होता है और उस बैम्बू से वो कैसी आवाज़ करते हैं? थर्ड की आवाज़ करते हैं और जिंगल की आवाज़ करती हैं. ओके, सो ये एक ट्रेडिशनल साउंड है और इस साउंड का क्या मतलब होता है? जब इस तरह की थर्ड या जिंगल की साउंड आती है अर्ली मॉर्निंग आवर्स में तो इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है, इस आवाज़ को सुन के सब समझ जाते हैं दैट द बेकर इज़ देयर, अ बेकर हैज़ कम टू सेल आउट हिज ब्रेड्स. ओके, सो ये जो साउंड है ये साउंड हेराल्डिंग यानी ये जो साउंड है ये अनाउंस करती है दैट द बेकर इज़ देयर. ये जो साउंड है ये सिंबल है दैट द बेकर हैज़ अराइव्ड. ये बेकर के अराइवल का सिंबल है. ओके, कैन स्टिल बी हर्ट इन सम प्लेसेस. और ये जो आवाज़ है कि बेकर आ गया है और वो अपने बैम्बू से जिस तरह से थर्ड की और जिंगल की आवाज़ करता है, सो ये जो आवाज़ है दिस वॉइस दिस साउंड कैन बी हर्ट इन सम प्लेसेस ऑफ गोवा. ओके, सो गोवा के कुछ प्लेसेस में अभी भी यही सिस्टम है, यही कल्चर है. जो बेकर है वो इसी तरह से आता है एक बैम्बू के साथ, वो एक पर्टिकुलर आवाज़ जो है वो प्रोड्यूस करता है और उस आवाज़ से सब समझ जाते हैं दैट यस बेकर इज़ देयर. राइट, Maybe the father is not alive, but the son still carries on the family profession. Next writer is saying कि ये जो काम है बेकिंग का ये इतना पुराना है कि जो फादर है, ओके, मतलब वो पर्सन जो ओल्डन टाइम में बेकिंग का काम किया करते थे, जो बेकर्स थे, वो तो हो सकता है अब अलाइव ना हो. ओके, क्योंकि बहुत पुरानी बात है जब पोर्टुगीज पीपल जो थे दे यूज्ड टू रूल ऑन गोवा, तब की बात है. राइट, सो जो फादर है जिन्होंने ये प्रोफेशन स्टार्ट किया था, इट इज़ पॉसिबल दैट दे आर नो
मोर नाउ, बट जो उनके सन है वो अपने इसी फैमिली प्रोफेशन को कंटिन्यू कर रहे हैं, वो इसे ही कैरी ऑन कर रहे हैं। ओके, सो उन बेकर्स के जो सन थे उन्होंने अपने फादर के प्रोफेशन को ही अडॉप्ट कर लिया और उसी प्रोफेशन को वो कंटिन्यू कर रहे हैं, कैरी ऑन कर रहे हैं। These bakers are even today known as पैडर in गोवा, और ये जो बेकर्स है इन्हें गोवा में ओल्डन टाइम्स में, अर्लियर टाइम्स में इनको पैडर कहा जाता था। ओके, जब यहाँ पे पोर्टुगीज पीपल रूल किया करते थे, सो उस टाइम बेकर्स के लिए एक पर्टिकुलर वर्ड यूज किया जाता था, दैट वाज पैडर। सो स्टिल इन गोवा बेकर्स आर नोन एज पैडर ओनली, राइट। During our childhood in Goa, the baker used to be our friend, companion and guide. Next writer कह रहे हैं कि when he was a child, when he was in his childhood and he was in Goa, then the baker, जो baker हुआ करता था, he was his friend, he was his companion and he was his guide. Okay, so जो baker था उसके साथ बच्चे इतने attached हो जाया करते थे क्योंकि baker उनकी favorite चीज़ लाया करता था, bread लाया करता था, इसीलिए जो baker था he used to be a friend, a companion and a guide for the children. He used to come at least twice a day, और जो बेकर था वो किस तरह से आता था अपनी ब्रेड को सेल आउट करने के लिए, जो उसका रूटीन था, जो उसका सिस्टम था, द सिस्टम वॉज दिस दैट ही यूज टू कम ट्वाइस अ डे, ट्वाइस मीन्स 2 times in a day. Okay, once when he set out in the morning on his selling round and then again when he returned after emptying his huge basket. So every day he used to come twice, 2 times. So 2 times कौन से हुआ करते थे? वंस, एक बार तो कब आता था? इन द मॉर्निंग, जब वो अपने सेलिंग राउंड पे निकला करता था। ओके, सो ही यूज टू कैरी अ बिग बास्केट फुल ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ ब्रेड, और उस बास्केट को लेके वो अपने सेलिंग राउंड पे निकला करता था। तो एक बार तो वो मॉर्निंग में आता था जब वो अपना सारा सामान, हर तरह की ब्रेड वो बेचने के लिए निकला है। ओके, और फिर वापस से कब आता था? जब वो अपनी उस बास्केट को, जो ह्यूज बास्केट को वो मॉर्निंग में फिल करके आता था, लेकिन शाम होते होते उसकी वो पूरी बास्केट एम्प्टी हो जाया करती थी। सो जब उसकी बास्केट एम्प्टी हो गई है, उसका सारा सामान बिक चुका है, सो जब वो वापस रिटर्न हो रहा है तो एक बार सेकेंड टाइम वो वापस भी आया करता था। ओके, सो इस तरह ही यूज टू कम ट्वाइस, 2 times इन अ डे, फर्स्ट इन द मॉर्निंग वंस जब वो अपने सेलिंग राउंड पे निकला करता था, एंड फॉर द सेकेंड टाइम इन द इवनिंग जब वो अपनी बास्केट को खाली करके वापस लौट रहा होता था। ओके, The jingling thud of his bamboo woke us up from sleep and we ran to meet and greet him. अब जब वो अर्ली मॉर्निंग में आता था, जब वो अपने सेलिंग राउंड पे आता था, एंड ही वॉज देयर विथ अ ह्यूज बास्केट दैट इज़ फुल ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ ब्रेड, सो वो एक बहुत ही पर्टिकुलर वॉइस जो था वो प्रोड्यूस किया करता था, एक पर्टिकुलर साउंड, वी कैन से अ थर्ड साउंड और अ जिंगलिंग साउंड विद द हेल्प ऑफ हिज बैम्बू। ओके, सो उस बैम्बू के द्वारा एक पर्टिकुलर साउंड वो प्रोड्यूस किया करता था। तो उस साउंड की आवाज़ से जब राइटर कह रहे हैं कि व्हेन ही वाज अ चाइल्ड, व्हेन ही वाज इन हिज चाइल्डहुड, तो ही यूज्ड टू अवेक। ओके, वो उस आवाज़ से वो जाग जाया करते थे अपनी नींद से, और जैसे ही वो जागते उन्हें पता चलता ओके देयर इज़ अ बेकर इन द स्ट्रीट आउटसाइड द हाउस, देयर इज़ अ बेकर, देन ही यूज्ड टू रन जस्ट टू मीट द बेकर एंड जस्ट टू ग्रीट हिम। ओके, सो बच्चों के लिए बेकर जो था ही वॉज वन ऑफ देयर फेवरेट पर्सनस, क्योंकि वो उनकी फेवरेट चीज़ लाया करता था, ब्रेड लाया करता था। सो वी हैव रेड अर्लियर दैट बेकर वॉज देयर फ्रेंड, he was their companion and guide. So बच्चों को बेकर का आना इतना पसंद होता था कि उसकी उस जिंगलिंग साउंड से, थर्ड साउंड से they used to wake up early in the morning, and when they realized that okay there is a baker outside, they used to run to meet him and greet him. Why was it so? Was it for the love of the loaf? अब आगे राइटर कह रहे हैं कि बच्चे जो थे वो इतना एक्साइटेड क्यों होते थे बेकर के आने से, जैसे ही बेकर की आवाज़ सुनते थे वो अपनी नींद तक छोड़ के बाहर क्यों भाग जाते थे, इतना एक्साइटमेंट बेकर के आने की वजह से क्यों होता था? आगे वो खुद ही आंसर दे रहे हैं कि क्या रीडर्स को ऐसा लग रहा है कि जो एक्साइटमेंट था बच्चों में वो उस लॉफ ऑफ ब्रेड, वो उस लॉफ ऑफ ब्रेड के लिए था, उस ब्रेड के लोफ के लिए क्या वो एक्साइटमेंट था? नॉट एट ऑल। आगे वो इस चीज़ का आंसर खुद ही दे रहे हैं, एंड ही सेइंग दैट नो इट वाज नॉट लाइक दैट। हम बच्चों को उस लॉफ ऑफ ब्रेड के लिए एक्साइटमेंट नहीं था। द लोव्स वर ब्रॉट बाय सम पेस्किन और बेस्टिन द मेड सर्वेंट ऑफ द हाउस, क्योंकि वो जो लोफ है, जो ब्रेड है, वो तो जो घर के मेड सर्वेंट हैं, पेस्किन एंड बेस्टिन आर द मेड सर्वेंट, तो जो घर के मेड सर्वेंट है वो तो ब्रेड ले ही लेंगे,
मिलेंगी। सो हम बच्चों का जो एक्साइटमेंट था दैट वाज नॉट फॉर दैट लॉफ ऑफ ब्रेड, व्हाट वी लॉन्ग फॉर वर दोज ब्रेड बैंगल्स विच वी चोज केयरफुली। लेकिन बच्चों का जो एक्साइटमेंट था, जिस वजह से बच्चे इतने ज़्यादा एक्साइटेड रहते थे बेकर से मिलने के लिए, वो किसके लिए था? सो राइटर इस बात को क्लियर कर रहे हैं और कह रहे हैं व्हाट वी लॉन्ग फॉर मीन्स विश फॉर। ओके, सो राइटर इज सेइंग दैट व्हाट दे लॉन्ग फॉर वर दोज ब्रेड बैंगल्स। सो जो उनका एक्साइटमेंट था दैट वाज फॉर द ब्रेड बैंगल्स, वो ब्रेड बैंगल्स जिन्हें कि बच्चे खुद ही उस बास्केट में से चूज किया करते थे बहुत ही केयरफुली कि ओके आई वांट दिस ब्रेड बैंगल, आई वांट दिस ब्रेड बैंगल्स। सो बच्चे खुद ही चूज किया करते थे। ओके, एंड व्हाट इज ब्रेड बैंगल्स? सो हियर यू कैन सी दिस इज द ब्रेड एंड these are in the shape of a bangle. Okay, that's why it is known as bread bangles. Okay, और इस तरह की होती है जैसे कि आप लोग सब डोनट्स खाते हैं, राइट? आप सबने खाया होगा डोनट, बच्चों का बहुत फेवरेट होता है। तो जो डोनट की शेप होती है ये ऑलमोस्ट वैसा ही होता है और ये बिल्कुल बैंगल जैसा लगता है। इट इज़ अ काइंड ऑफ स्वीट ब्रेड, तो इसीलिए इसको कहा जाता है ब्रेड बैंगल, क्योंकि दिखने में बिल्कुल बैंगल जैसा लगता है। सो राइटर कह रहे हैं कि हम बच्चों का एक्साइटमेंट लॉफ ऑफ ब्रेड के लिए नहीं था, क्योंकि वो तो घर के मेड सर्वेंट ले ही लेगी, लेकिन बच्चों का एक्साइटमेंट होता था फॉर दिस ब्रेड बैंगल्स, राइट? समटाइम्स इट वॉज स्वीट ब्रेड ऑफ स्पेशल मेक, और कभी कभी उन्हें बास्केट में क्या मिल जाया करती थी, कभी कभी जो बेकर होते थे वो किसी स्पेशल पर्पस से कोई स्वीट ब्रेड भी बना लिया करते थे, वो भी उन्हें मिल जाती थी। सो इन सब चीज़ों के लिए बच्चों के मन में देयर वॉज अ काइंड ऑफ एक्साइटमेंट व्हेन दे यूज्ड टू हियर द साउंड ऑफ अ बेकर, राइट? The baker made his musical entry on the scene with the jang jang sound of his specially made bamboo stuff. Okay, so we have read earlier कि जब वो बेकर आया करता था so he used to produce a particular sound, a third sound or we can say jingle sound. So जो बेकर होता था उसकी एंट्री कैसी होती थी? उसकी एंट्री काफ़ी म्यूजिकल होती थी, क्योंकि वो एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ म्यूजिक ही यूज टू प्रोड्यूस। ओके, और वो प्रोड्यूस कैसे करता था? उसके पास एक स्पेशली मेड बैम्बो स्टाफ होता था। ओके, सो इन द पिक्चर हियर वी कैन सी दिस इज अ काइंड ऑफ बैम्बो स्टाफ। सो इसको वो कैरी किया करता था अपने साथ और इसकी हेल्प से वो उस पर्टिकुलर म्यूजिक को प्रोड्यूस किया करता था। और इसीलिए बेकर की जो एंट्री होती थी उस सीन में, सीन मतलब जैसे वो घर के सामने आया है और उसके आसपास सब बच्चे हैं वो इकट्ठा हो गए हैं, सो सीन में जो बेकर की एंट्री होती थी वो एंट्री हमेशा बहुत ही म्यूजिकल एंट्री हुआ करती थी, क्योंकि बेकर जो था ही यूज्ड टू प्रोड्यूस दिस स्पेशल काइंड ऑफ म्यूजिक विद द हेल्प ऑफ दिस स्पेशली मेड bamboo stuff. Okay, one hand supported the basket on his head and the other banged the bamboo on the ground. Okay, अब जो बेकर है वो किस तरह से आता था? जो उसकी बास्केट है, द ह्यूज बास्केट दैट इज फुल विद डिफरेंट काइंड्स ऑफ ब्रेड, उस बास्केट को तो वो कहाँ रखता था? ऑन हिज हेड, और फिर उसे वो सपोर्ट करता था विद वन ऑफ हिज हैंड। ओके, सो बास्केट उसने अपने हेड पे रख ली, वो वन ऑफ हिज हैंड उसने उस बास्केट को सपोर्ट कर लिया, एंड विद द हेल्प ऑफ अदर हैंड ही यूज्ड टू बैंग द बैम्बू ऑन द ग्राउंड। ओके, सो एक हाथ तो कहाँ है? जो सिर पे बास्केट है उसको सपोर्ट करने के लिए उसने यूज किया है, एंड विद द हेल्प ऑफ द सेकंड हैंड ही यूज्ड टू होल्ड दैट बैम्बू स्टिक, दैट बैम्बू स्टाफ, और उसे वो ग्राउंड पे एक तरह से ग्राउंड पे उसको टकरा के वो आवाज़ प्रोड्यूस करता था। वो जो आवाज़ थी दैट वॉज द म्यूजिकल एंट्री ऑफ द बेकर। ही वुड ग्रीट द लेडी ऑफ द हाउस विथ गुड मॉर्निंग एंड देन प्लेस हिज बास्केट ऑन द वर्टिकल बैम्बू। ओके, और जैसे ही वो आता था उसकी आवाज़ सुन के जो घर की लेडीज़ हुआ करती थी वो बाहर आती थी, क्योंकि उन्हें ब्रेड लेनी होती थी उससे। तो जैसे ही वो देखा करता था लेडी ऑफ द हाउस को, तो वो उसको ग्रीट किया करता था, क्या कह के? विथ अ गुड मॉर्निंग, एंड देन ही यूज्ड टू प्लेस हिज बास्केट, जो बास्केट अभी तक उसके सिर पे थी उस बास्केट को वो फिर उतार लेता था, एंड ही यूज्ड टू प्लेस इट ऑन द वर्टिकल बैम्बो। ओके, सो बैम्बो स्टिक उसके पास हुआ करती थी, उसे वो वर्टिकली रख के ही यूज्ड टू प्लेस दैट basket on that bamboo stick, right? We kids would be pushed aside with a mild rebuke and the loaves would be delivered to the servant. अब जो बच्चे हैं because of the excitement वो भी फटाफट बाहर भाग के आ जाया करते थे, and you know they used to circle, they used to make a circle around the baker. अब जो घर के बड़े हुआ करते थे वो क्या करते थे? वो बच्चों को थोड़ा सा एक साइड में पुश कर दिया करते थे, और कैसे? with a mild rebuke, rebuke means to scold. Okay, so बच्चे मान नहीं रहे हैं और बेकर को घेर के खड़े हो
जाया करते थे। अब बेकर से ब्रेड लेनी है और बच्चे आगे आगे खड़े हैं, सो ऐसे में जो घर के एल्डर्स हैं वो बच्चों को थोड़ा सा डांट के उन्हें साइड में पुश कर दिया करते थे, और फिर जो बेकर था वो घर के सर्वेंट को जो ब्रेड होती थी, जो लेनी होती थी, वो उनको डिलीवर कर दिया करता था। बट वी वुड नॉट गिव अप, लेकिन जो बच्चे हैं वो इतने ईजिली हार नहीं मानते हैं। उन्हें वहाँ से तो एल्डर्स ने हटा दिया, लेकिन वो इतना ईजिली गिव अप नहीं करते थे। वी वुड क्लाइम अ बेंच और अ पैरापेट एंड पीप इनटू द बास्केट समहाउ। ओके, सो बच्चे इतना ईजिली गिव अप नहीं करते, एंड समहाउ दे यूज टू मैनेज कि वो एक बेंच पर चढ़ जाए या फिर किसी पैरापेट पे चढ़ जाए, और वहाँ से दे वर एबल टू पीप इनटू द बास्केट। वो बास्केट के अंदर पीप इनटू करना चाहते थे। दे जस्ट वांटेड टू लुक दैट व्हाट इज देयर इनसाइड द बास्केट। बास्केट के अंदर और कौन कौन सी डिफरेंट काइंड्स ऑफ ब्रेड है ये वो देखना चाहते थे। तो वो देखने के लिए वो या तो किसी बेंच पे चढ़ जाते हैं या फिर किसी पैरापेट पे। पैरापेट इज अ लो वॉल अलोंग द एज ऑफ अ रूफ। ओके, हियर इन द पिक्चर यू कैन सी दिस वॉल इज नॉन एज पैरापेट। ओके, सो उनको किसी हाइट पे चढ़ना होता था बिकॉज दे वांटेड टू लुक व्हाट इज देयर इनसाइड द बास्केट। तो वो किसी हाइट पे चढ़ने के लिए या तो किसी बेंच पे चढ़ जाया करते थे, और दे यूज टू क्लाइम ऑन दिस काइंड ऑफ पैरापेट। यहाँ पे चढ़ के दे जस्ट वांटेड टू लुक व्हाट इज देयर इनसाइड इन द बास्केट ऑफ द बेकर। I can still recall the typical fragrance of those loaves। तो राइटर कह रहे हैं कि बचपन में उन्होंने इतना ज़्यादा बेकर को देखा है, इतना क्लोजली देखा है और इतना फ्रिक्वेंटली देखा है कि वो जो एक पर्टिकुलर फ्रेगरेंस है ब्रेड की, फ्रेगरेंस मीन्स सेंट। ओके, सो वो जो पर्टिकुलर फ्रेगरेंस है ब्रेड की, वो फ्रेगरेंस राइटर को अभी तक याद है। वो बहुत ईजिली रिकॉल कर सकते हैं कि क्या कौन सी फ्रेगरेंस जो थी वो आया करती थी। उस फ्रेगरेंस से राइटर इतने ज़्यादा हैबिचुअल थे अपने बचपन में कि वो फ्रेग्रेंस इज स्टिल देयर इन हिज माइंड। अभी भी वो उसे बहुत इजीली रिकॉल कर सकते हैं। ओके, loaves for the elders and the bangles for the children। तो इस तरह से जब बेकर आया करता था, सो घर के सभी लोग क्या लिया करते थे? दे यूज टू टेक loaves for the elders and also bangles, and those bangles were for the children। Then we did not even care to brush our teeth or wash our mouths properly। सो हमने पढ़ा था कि अर्ली मॉर्निंग का टाइम होता था और बेकर की आवाज़ से ही बच्चे जो थे वो उठा करते थे। अब बच्चे उठे हैं, उठते उन्होंने देखा बाहर बेकर है, बेकर से उनकी फेवरेट ब्रेड बैंगल्स भी उन्होंने ले ली। अब जब ब्रेड बैंगल्स आ जाती थी तो राइटर कह रहे हैं कि उसके बाद वो इतनी भी केयर नहीं करते थे दैट दे हैव टू ब्रश देयर टीथ और दे हैव टू वॉश देयर माउथ्स प्रॉपरली। ओके, सो ब्रेड को खाने के लिए वो इतने ज़्यादा ईगर हो जाया करते थे कि उनसे इतना भी वेट नहीं होता था दैट फर्स्ट दे हैव टू ब्रश और दे हैव टू वॉश देयर फेस। वो इतना भी वेट नहीं कर पाते थे। एंड वाई शुड वी, और राइटर कह रहे हैं कि और वैसे भी वाई वी हैव टू ब्रश आवर टीथ, वाई वी हैव टू वॉश आवर फेस, हु वुड टेक द ट्रबल ऑफ प्लकिंग द मैंगो लीफ फॉर द टूथ ब्रश। ओके, सो दिस इज वन मोर एंशियंट कल्चर और वी कैन से सिस्टम दैट वाज देयर इन इंडिया। एंड आई एम श्योर यू हैव ऑल्सो हर्ड अबाउट दिस कि पुराने समय में ब्रश करने के लिए पेड़ की टहनी का यूज़ किया जाता था। हमने सुना है नीम का भी यूज़ किया जाता था। सो हेयर राइटर इज सेइंग दैट उस समय ब्रश करने के लिए दे हैव टू प्लग द मैंगो लीफ। ओके, जो मैंगो का ट्री होता था उसकी लीफ को दे यूज टू प्लग एंड विद द हेल्प ऑफ दैट लीफ दे यूज टू ब्रश देयर टीथ। तो वो कह रहे हैं कि जब सामने ब्रेड बैंगल हैं जिसमें से इतनी अच्छी फ्रेग्रेंस आ रही है, सो ऐसे में इतनी ट्रबल कौन उठाएगा कि जाके पहले मैंगो के पेड़ से लीफ को प्लग करो एंड देन उसकी हेल्प से अपने टीथ को ब्रश करो, अपने फेस को वॉश करो। इतनी ट्रबल किसको लेनी थी? एंड वाई वॉज इट नेसेसरी एट ऑल? नाउ ही इज सेइंग कि ये ब्रश करना, फेस वॉश करना, ये इतना नेसेसरी भी क्यों है? द टाइगर नेवर ब्रश्ड हिज टीथ। सो अब वो बहुत ही एक फ़नी वे में कह रहे हैं कि वैसे भी हम सब ने सुना है कि जो टाइगर है वो कभी भी अपने टीथ को ब्रश नहीं करता है। सो दिस इज़ अ वेरी कॉमन एक्सक्यूज़ जो आई एम श्योर आप लोग भी अपने घर पे देते हैं जब भी बच्चों से कहा जाता है ब्रश करने के लिए और वो उनके बहुत ज़्यादा वो लेज़ी फील करते हैं कि उनको अभी ब्रश नहीं करना। सो दिस इज़ द मोस्ट कॉमन एक्सक्यूज़ दैट द चिल्ड्रन यूज टू गिव दैट अ टाइगर नेवर ब्रश्ड हिज टीथ। ओके, सो सेम बात राइटर यहाँ पे कह रहे हैं कि जब वो बच्चे थे सो एज अ चाइल्ड वो भी ये सोचा करते थे कि ब्रश करना इतना ज़रूरी क्यों है, वैसे भी टाइगर कभी भी ब्रश नहीं करते हैं।
हैं. Hot tea could wash and clean up everything so nicely after all. और उनके माइंड में फिर ये भी आता था कि अब जब वो ब्रेड बैंगल्स खाएंगे उसके बाद वो क्या लेंगे, एक हॉट टी भी वो पीने वाले थे. सो जब वो एक हॉट टी पिएंगे और जब मुंह में वो हॉट टी जाएगी, सो विद द हेल्प ऑफ दैट टी जो मुंह में जितने भी जर्म्स हैं या फिर हम कह सकते हैं जो मुंह है वो अच्छे से क्लीन हो जाएगा, वॉश हो जाएगा. मतलब वो राइटर का एक और एक्सक्यूज़ ये है कि वैसे भी जब हम हॉट टी पिएंगे सो मुंह तो अपने आप क्लीन और वॉश वैसे भी हो ही जाएगा, इसलिए ब्रश करने की कहाँ ज़रूरत है. Marriage gifts are meaningless without the sweet bread known as the bowl, just as a party or a feast loses its charm without bread. अब आगे वो बता रहे हैं कि importance of bread, जो गोवा का कल्चर है, जो वहाँ का ट्रेडिशन है, उसमें जो ब्रेड है जो और वी कैन से जो बेकर है उसका क्या रोल है. हर ओकेज़न पे जो ब्रेड है वो कितना एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है. डैट इज़ द राइटर जो हमें बता रहे हैं. सो वो कह रहे हैं कि जब गोवा में मैरिज होती है सो जो मैरिज में जो मोस्ट कॉमन गिफ्ट होता है वो क्या होता है, वो एक स्वीट ब्रेड होती है जिसको क्या कहा जाता है, बोल. तो वो कह रहे हैं कि जो मैरिज गिफ्ट है दे आर मीनिंगलेस. अगर उन गिफ्ट में आपने ये स्वीट ब्रेड दैट इज बोल अगर आपने ये ऐड नहीं की है सो ऑल योर गिफ्ट्स आर मीनिंगलेस इफ द बोल इज नॉट देयर. ओके, नेक्स्ट ही इज सेइंग दैट जस्ट एज द पार्टी और अ फीस्ट loses its charm without bread, and if one is organizing a party or one is organizing a feast then he has to add some kind of bread in his menu. okay, so उस पार्टी में और फीस्ट में कोई चार्म नहीं रहेगा अगर आपने अपने मेन्यू में किसी ब्रेड को ऐड नहीं किया है. so this is the importance of bread in that culture, in that tradition. okay, not enough can be said to show how important a baker can be for a village. okay, so now the writer is saying that definitely for a village, okay, a baker he was definitely having a very important role, okay, in the life of the people from the village. okay, the lady of the house must prepare sandwiches on the occasion of her daughter's engagement. okay, so this was the custom in the villages कि जब भी जो घर की डॉटर है, okay, जब भी उसकी engagement पार्टी होती है so for that ओकेजन जो लेडी ऑफ द हाउस है, ओके, वो क्या करती है, शी मस्ट प्रिपेयर सैंडविचेज. ओके, सो जब भी डॉटर की एंगेजमेंट होती है सो फॉर दैट ओकेजन हमेशा सैंडविचेस जो होते हैं वो बनाए जाते हैं. ओके, एंड टू मेक सैंडविचेस ऑब्वियसली ब्रेड की जरूरत होती है और ब्रेड कहाँ से आती है, बेकर के यहाँ से आती है. राइट, केक्स एंड बोलिनियास आर अ मस्ट फॉर क्रिसमस एज वेल एज अदर फेस्टिवल्स. ओके, सो नाउ वी हैव रेड अबाउट द एंगेजमेंट पार्टी एंड जो क्रिसमस होता है, राइट, एंड जो और दूसरे बाकी फेस्टिवल्स होते हैं. सो फॉर दोज फेस्टिवल्स क्या चीज़ है जो कि मस्ट है, केक्स एंड बोलिनियास. ओके, सो बोलिनियास आर कोकोनट कुकीज. ओके, सो इन दिस पिक्चर वी कैन सी दीज आर कोकोनट कुकीज और वी कैन से बोलिनियास. सो टू सेलिब्रेट क्रिसमस एंड सम अदर फेस्टिवल्स दीज कोकोनट कुकीज एंड केक्स, ओके, दे आर मस्ट. ओके, एंड ऑब्वियसली केक्स एंड कुकीज ये सब भी कौन बनाते हैं, बेकर बनाते हैं. राइट, सो नाउ वी कैन से दैट यस इन द लाइफ ऑफ द विलेज पीपल बेकर दे are having a very important role. okay, because to celebrate each and every occasion and festivals जितने भी सामान चाहिए हमें वो सब कहाँ से आता है, बेकर के यहाँ से आता है. राइट, Thus, the presence of the baker's furnace in the village is absolutely essential. So पहले राइटर ने इतने सारे हमें रीज़न बता दिए हैं, इतने सारे हमें यूजेस बता दिए हैं कि एक बेकर के द्वारा बनाई गई ब्रेड किस किस तरह से कहाँ कहाँ काम में आती है. Now he is saying that because of all those reasons, जो एक बेकर की फर्नेस होती है that is very absolutely essential in the villages. Absolutely means totally and essential means necessarily. okay, this is the reason कि जो बेकर है और उसकी जो फर्नेस है वो बहुत ज़्यादा असेंशियल है, नेसेसरी है विलेज में, क्योंकि उसके बिना कोई भी फंक्शन, कोई भी वेडिंग, कोई भी इंगेजमेंट, कोई भी फेस्टिवल जो है वो कंप्लीट नहीं हो सकता. The baker or bread seller of those days had a peculiar dress known as the kabai. अब now जो writer है he is giving some description about their looks, about their appearance कि वो किस तरह की dress पहना करते थे, what kind of dress they used to wear. So writer is saying that in earlier time जो baker थे और जो bread seller थे वो they used to wear a particular dress known as kabai. Okay, what is peculiar? Peculiar means strange. So it was a very strange
kind of dress and the name of the dress was kabai. It was a single piece long frock reaching down to the knees. और ये जो कबाई ड्रेस है किस तरह की होती थी? It was a single piece, okay, single piece में one piece में ड्रेस होती थी and it was kind of a long frock और ये आपके knees तक आया करती थी, okay. So here in the picture you can see this is the image of a baker wearing this dress kabai. So ये एक बेकर है, इसने कबाई पहनी हुई है. We can see this is a single piece dress, okay. और ये कहाँ तक आ रही है? knees तक आ रही है और ये बेकर है. This is the basket and this is the bamboo staff that he is holding with one of his hand, okay. So this is the baker from Goa. So इसी तरह की ड्रेस पहना करते थे और इसी तरह से holding the basket with the help of one hand and in the other hand he was holding this bamboo staff. He used to come to sell his breads, right? In our childhood, we saw bakers wearing a shirt and trousers which were shorter than full length ones and longer than half pants, okay. So in the earlier time the bakers used to wear that dress that we have read, that was kabai, but later on their dress also changed. So that is saying that when he was in his childhood तब bakers की जो dress थी वो change हो गई थी, okay. So that time bakers क्या पहना करते थे? Now they used to wear a shirt and a trouser और जो trouser था की लेंथ क्या हुआ करती थी? They were shorter than full length ones and longer than half pant, okay. So जो ट्राउजर बेकर्स पहना करते थे वो हाफ पैंट से तो लंबे होते थे, लॉन्गर होते थे और जो फुल पैंट होती है उससे वो शॉर्ट होते थे, okay. So इस लेंथ के वो ट्राउजर पहना करते थे. Even today, anyone who wears a half pant which reaches just below the knees invites the comment that he is dressed like a pedder. So आगे राइटर कह रहे हैं कि यानी कि ये बात लोगों के माइंड में इतनी ज़्यादा है कि जो बेकर हैं वो उनका ये पर्टिकुलर कॉस्ट्यूम है. सो राइटर कह रहे हैं कि आज भी अगर कोई व्यक्ति ऐसा आ जाए, इफ़ अ पर्सन इज़ देयर हु इज़ वेयरिंग अ हाफ पैंट, ओके, और उसके जो हाफ पैंट है वो कहाँ तक पहुँच रही है? वो उसके नीज़ के भी बिलो तक पहुँच रही है. यानी कि हाफ पैंट वैसे कहाँ होती है? नीज तक होती है, ओके. और फुल पैंट होती है फुल लेंथ की. और हमने पढ़ा है कि जो बेकर है वो कैसी पैंट पहना करते थे? जो कि हाफ पैंट से थोड़ी लंबी हुआ करती थी, लॉन्गर, एंड इट यूज्ड टू बी शॉर्टर देन द फुल लेंथ वंस, ओके. इसीलिए अगर अ पर्सन इज देयर हु इज वेयरिंग अ हाफ पैंट बट दैट इज रीचिंग बिलो द नीज, तो ऐसे में वो पर्सन क्या करता था? ही यूज्ड टू इनवाइट द कमेंट दैट ही इज ड्रेस्ड लाइक अ पैडर. कि तो उस पर्सन को देख के हर कोई कमेंट किया करता था. क्या कमेंट किया करता था? दैट ही इज ड्रेस्ड लाइक ए पैडर, क्योंकि उस पर्टिकुलर लेंथ की जो पैंट थी वो पैडर ही पहना करते थे. ये उनकी एक टिपिकल कॉस्ट्यूम हुआ करती थी. इसलिए आज भी अगर कोई उस लेंथ के शॉर्ट्स पहन लेता है, उस लेंथ की पैंट पहन लेता है, तो उसको देख के हर कोई यही कमेंट करता है दैट ही इज ड्रेस्ड अप लाइक अ पैडर, ओके. The baker usually collected his bills at the end of the month. अब आगे राइटर कह रहे हैं कि बेकर अब डेली आता था, डेली से ब्रेड ली जाती थी, लेकिन इसका जो पेमेंट था वो डेली बेसिस पे नहीं होता था, ओके. सो ये जो अपना बिल था वो कब कलेक्ट करता था? एट द एंड ऑफ द मंथ, ओके. सो मंथ एंड पे ये पूरे मंथ का बिल एक साथ कलेक्ट किया करता था. मंथली अकाउंट्स यूज्ड टू बी रिकॉर्डेड ऑन सम वॉल इन पेंसिल. अब जो घर के लोग हैं उनको पूरा रिकॉर्ड रखना है कि आज इस डेट को इतनी ब्रेड ली है, आज इतनी ब्रेड ली है. सो वो जो रिकॉर्ड होता था वो किसी कॉपी में नहीं लिखा जाता था, बट राइटर इज टेलिंग कि वो जो रिकॉर्ड था वो रिकॉर्ड किसी वॉल पे लिखा जाता था विद द हेल्प ऑफ सम पेंसिल, ओके. Baking was indeed a profitable profession in the old days. Now writer is saying कि पुराने समय में जो बेकिंग था that was very profitable profession. Profitable means beneficial. So जो bakers थे they used to earn very good money, क्योंकि जो breads थी they used to be very popular among the people. इसलिए जो bakers थे they used to earn very good money. That is the reason कि जो baking था वो बहुत ही profitable profession था. It was a very beneficial profession, okay. The बेकर एंड हिज फैमिली नेवर स्टार्व्ड. और इसीलिए जो बेकर होता था और उसकी जो फैमिली होती थी वो कभी भी स्टार्व नहीं होते थे. कभी भी ऐसा नहीं होता था कि उनको खाना नहीं मिल रहा है भरपेट, ओके, और उनके पास पैसे नहीं है, वो अच्छे से खाना नहीं खा पा रहे हैं. ऐसा कभी नहीं होता था, क्योंकि बेकर काफ़ी अच्छा मनी अर्न किया करते थे, इसीलिए उनकी फैमिली भी बहुत अच्छे से रहा करती थी.
He, his family and his servants always looked happy and prosperous. आगे राइटर कह रहे हैं कि he means जो बेकर हुआ करता था, उसकी जो फैमिली हुआ करती थी और उसके साथ जो सर्वेंट्स हुआ करते थे टू हेल्प हिम, वो सभी हमेशा हैप्पी लगा करते थे और हमेशा ही प्रॉस्परस रहा करते थे. प्रॉस्परस मीन्स मतलब वेल टू डू होते थे. बहुत ज़्यादा कभी उन्होंने पॉवर्टी अपनी लाइफ में नहीं देखी थी क्योंकि उनका बिजनेस काफ़ी अच्छा चलता था, इसलिए जो सर्वेंट्स होते थे वो भी बिल्कुल अच्छे से रहते थे. वो भी ऐसे नहीं था कि बहुत ज़्यादा पुअर हो, ऐसा नहीं था. Their plump physique was an open testimony to this. आगे राइटर कह रहे हैं कि जो बेकर है वो जनरली कैसे दिखा करते थे, उनकी फिजिक कैसी होती थी, काफ़ी प्लम्प होती थी. प्लम्प फिजिक मतलब फैट बॉडी. ओके, सो जो बेकर की एक अपीयरेंस होता था, उनका जो लुक होता था वो ऐसा होता था कि वो काफ़ी फैट होते थे, एक तरह से काफ़ी हेल्दी होते थे. तो राइटर कह रहे हैं कि उनका हेल्दी होना ही एक ओपन टेस्टिमोनी है. टेस्टिमोनी मीन्स एविडेंस है, एक प्रूफ है इस बात का कि वो काफ़ी अच्छा मनी अर्न करते थे. उन्होंने कभी भी पॉवर्टी अपनी लाइफ में नहीं देखी थी. ओके, सो राइटर अगेन ये बहुत ही फनी वे में कह रहे हैं कि जो बेकर्स थे वो हमेशा बहुत ही फैट हुआ करते थे और उनका फैट होना इस बात का एविडेंस है, इस बात का प्रूफ है दैट दे यूज्ड टू अर्न अ वेरी गुड मनी. ओके, even today any person with a jackfruit like physical appearance is easily compared to a baker. Next writer is saying कि आज भी अगर एक person है, if a person is there who is having a jackfruit like physical appearance, okay, तो अगर एक person की appearance कैसी है, jackfruit like appearance है. jackfruit हम सब ने देखा है, this is a jackfruit, so ये भी काफ़ी plump होता है, काफ़ी fat होता है ये. so writer कह रहे हैं कि अगर किसी की फिजिक ऐसी है, jackfruit जैसी है, सो उसके लिए भी क्या कहा जाता है, उसको भी एक बेकर से कंपेयर किया जाता है. उसको देख के भी ये कहा जाता है कि दैट ही इज लुकिंग लाइक अ बेकर. ओके, सो राइटर कह रहे हैं, राइटर इस फिजिक को एसोसिएट कर रहे हैं टू अ बेकर, कि बेकर की जो फिजिक होती है वो जनरली ऐसी ही होती है. जनरली वो काफ़ी फैट होते हैं, हेल्दी होते हैं. इसीलिए अगर कोई ऐसा पर्सन दिख जाता है हु इज़ हैविंग दैट जैक फ्रूट लाइक अपीयरेंस, तो उसे भी कंपेयर किया जाता है दैट ही इज़ लुकिंग लाइक अ बेकर. ओके, so this chapter, this part ends here. I hope this part, a baker from Goa, is very much clear to you all. इस पार्ट में हमने बहुत सारी न्यू इन्फॉर्मेशन जानी है, कुछ नई बातें हमने जानी है दैट आर रिलेटेड विद गोवा, द कल्चर, द ट्रेडिशन दैट इज़ देयर इन गोवा. ओके, और जो बेकर है उसका क्या रोल है, कितना इंपॉर्टेंट पार्ट वो प्ले करता है गोवा की सोसाइटी में, गोवा के कल्चर में. ओके, सो आई होप दिस पार्ट इज़ वेरी मच क्लियर टू यू ऑल. इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल सी द कॉम्प्रिहेंशन पार्ट of this part. Okay, so see you in the next video. Thank you.